लगदा रसलियां रसलियां तारा तेरी सो रसलियां तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा पलाश पाइया डोगरिया ओ तारा दिया दिया आई जे तेरी सो तारा दिया दिया आई के बलश के दे फुल चुनी जा ओ तारा दिया दिया आई के तेरी सो तारा दिया दिया आई के बलश के दे फुल चुनी जा पलास पाइया डोगरिया ओ रसलियां तारा तेरी सो रसलियां तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा पलास पाइया डोगरिया ओ दो दिन छुट्टियां आई जा तेरी सो दो दिन छुट्टियां आई जा सुहानी उद भागने दी ओ दो दिन छुट्टियां आई जा तेरी सो दो दिन छुट्टियां आई जा सुहानी उद भागने दी पलास पाइया डोगरिया ओ रसलियां तारा तेरी सो रसलियां तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा नी तेरा बड़ा मंदा लगदा नी तेरा बड़ा मंदा लगदा नी तेरा बड़ा मंदा लगदा introduce you to one of my favorite professors in Jammu and Kashmir, that is Dr. Sudhir Singh. He is one of the finest English professor in our state. Besides this, he is an erudite scholar. I think nobody can match his scholarship, at least of his age. I would say beyond 55 or 50. There may be some other people, but up to the age of 50, I would say there is nobody who could match his scholarship, the kind of scholar he is. I wish I could have been a scholar like him. Besides this, right now he is Joint Secretary in Jammu Kashmir Board of School Education, and besides this, he is a very popular Dogri news reader. Can you imagine a person who is very good at English language and equally good at Dogri language? And besides this, he is working for the promotion of heritage and culture of the Dogras. So we are highly fortunate that today I have got the chance to introduce you, and you are in my college. Thank you very much, sir. And he would be speaking on languages of Jammu and Kashmir. And before starting that, I would like you to tell us about your journey also, because it will be a kind of inspirational episode for our students. So welcome, Dr. Sudhir Singh. Thank you, Shalini, for such a, I should say, exaggerated kind of introduction. Yes, I am a lover of Dogri, and I have been given by the government the responsibility of teaching English. So I teach, and when you teach, you are supposed to learn, so you have to be a scholar also. So that's all part of the profession. But nevertheless, thank you so much for a wonderful introduction. Madam Purnima Dutt, Sani Sir, my colleagues from Government College of Education, especially Professor Shalini, and dear students of this college. It's such a wonderful occasion for me, for a few reasons. One, just being pushed off into an administration of another organization and coming back to a college in such a kind of program, especially it's related to heritage. And amidst the academic kind of environment, it's such a treat for me today, and I'm so happy that I could make it. Though it was difficult yesterday, I could not make it, but today I could. So I'm very happy for that. Second thing is that
I am a bit nostalgic about one workshop that I organized. I think that was among the first workshops in the state. And that must have been second in Jammu, I think. The first workshop I participated as teacher in Women's College Udhampur, and then second I organized. So again, I'm reminded of that, and memories, they become, as fresh as if they happened today only. Now, Madam Shalini has requested कि थोड़ा सा I must go about my journey. My journey has been very simple, but one thing that I think must interest the students is that you must have a complete devotion to whatever you want to do. That's what I actually learned from my parents. Be just true to yourself. Being true to oneself is very, very difficult thing. And when you be true to yourself, then every day you have to introspect what you did, how you did, right or wrong. When you introspect, you dictate yourself, you correct yourself, you plan for the next day, and then you do not repeat the mistakes. Something very, very difficult, but if one does it, one is very, very successful in life. I tried that, and I found this to be very, very good strategy. So the students can actually, it's very, it takes just 2 minutes to introspect and think what you have done in the day. Did you learn something? And what you learned, is that worth something? That's all. How that is going to contribute in your life, in the life of people around you, and in society in general. That's very, very important. This is how our day should begin, and this is how our day should end. And especially you people who are being trained to be future teachers. You need to do this because you will be handling the most delicate part of our society, the students. And if you do not correct yourself, if you do not learn, you will not be able to be good teachers. And you will have to be good teachers because that's a great, I should say, in a society that is the greatest responsibility. And because you are actually building the nation. So I think I tried that, and still I'm trying that. I'm being a learner every day. And every day I explore myself, right or wrong, the track I'm following is right or wrong. So when I link that to my heritage, yes, when I started, I was like you only. I would speak this kind of Dogri only, as one of the girls said. I was scared of speaking Dogri because she was scared she would mix it with other languages. I was the same. Though I had a wonderful environment of Dogra speaking people, and I had the heritage of Dogri from Jammu and Dogri from Udhampur. And since my mother's family had some connections with the royal family also, so I had that kind of heritage also of the language. And then language, in its purest pristine form from Udhampur. But I was never given this kind of orientation when I was a child, that yes, this is something very, very precious to me. That kind of orientation I was never given, and which this kind of workshop is going to give. That is why I think that this is very, very, a sacred occasion for me as far as Heritage Volunteers is concerned. Because we are making you conscious to do it. I, as a language teacher, I find the biggest tool with any teacher is the language. Whatever language you have. We have Hindi, Dogri, Gojri, Punjabi. Whichever you like. You speak it, every day you learn it. Try to improve it. But the most important thing is, you need to connect yourself to it. If you don't connect yourself to your language, you don't identify yourself to your language, you will not be able to do justice with the language. Recently we just watched one wonderful activity. These girls did wonder, and they sang a song also by the most Reverend Lata Mangeshkar ji. Pala Sapaiya Dogriya. This is, I think, one of the most popular songs of Jammu. But when we were preparing our project, did we really listen to the song? We need to do justice with the language. मैंने कहा रोज हमें सुनना है, रोज हमें समझना है, जो किया वो ठीक किया कि नहीं किया.
उसमें बहुत अच्छे से गाया बच्चों ने. They enjoyed. I really appreciate the girl who had the courage to speak out Dogri, and she spoke wonderfully well. But few things again I would advise to the girl. जब हम अपनी भाषा बोलते हैं, जिला से अपनी भाषा बोलने हैं, असें दिखना कि जो अस बोलाने हैं क्या ओदा उवे तलफ़्फ़ज़ है, ओदा उच्चारण शुद्ध है. नंबर 1. नंबर 2 असें दिखना कि जेड़ा अखर अस बोलाने हैं ओदा किश मतलब निकलदा भी है. ओदा मतलब कुत्थै कि ये उन्नी गै सशक्त भाषा है जिन्नी थोड़ी अंग्रेजी है, जिन्नी थोड़ी हिंदी है. इहदे च कोई कमी नहीं है. अगर पर मिगी लगदा कि बच्चे हमेशा पता नहीं इसी शर्मिंदगी महसूस करदे इसी भाषा की. ये नहीं मैं आखना कि डोगरी वाले थोड़े मते करदे, पंजाबी वाले भी कुतै करदे, कश्मीरी वाले भी करदे लब्भने, पर उनकी तादाद बड़ी घट्ट है. साढ़े वाले की तादाद है वो बड़ी मती है. इत्थे बैठे दे मिलदा 90% जेह्ड़े न उन्हें मैं आखूं डोगरी बोलदे उन्हें या ते बोलनी नहीं है या उन्हें बुलोनी नहीं है. ते जो बोलङन भी ते ओह् उट्ट गुलाबी होई जानी जियां उस कुड़ी ने आखेआ. ओह् की होंदा कि भई अस अपनी भाषा पास्सै सौगे नहीं है. सौगे कि'यां होन होंदा? उ'नें आखेआ भला सपाइया डोगरेआ भला की, भले दा मतलब कि की लग्गेआ इत्थै, कवित्री ने की जोड़ेआ इत्थै भला, सोचने आह्ली गल्ल है. ते फ्ही अग्गें रौंसलियां धारां, ते तुसें केह् आखेआ? तुसें आखेआ रुसलियां. रुसना केह् होंदा? रूठना. ते धारां जिसलै रुसी गेइयां ते गा दे कैह्ली उसी? मेरी गल्ल समझ आई? शब्द दे कन्नै ओह्दा मतलब भाव केह् जुड़े दा उसी समझेआ नहीं जांदा. भाशा दे उसी अस केह्ड़ी आखगे? दैट्स अ डेड लैंग्वेज. भाशा गी जीवित कि'यां करना? तुसें उसी बोलियै ओह्दे उच्चारण करना, ओह्दे भाव जेह्ड़ा तुस उस च पागे, जिन्ना शैल भाव पागे ओह् भाव जेह्ड़ी मर्जी भाशा तुस बोलो, अंग्रेजी बोलो भाएं तुस फ्रेंच बोलो, जे तुस भाव नहीं पागे ओह् भाशा कदें भी जींदी नहीं होग. ओह् बड़ी मटीरियलिस्टिक जेही लग्गग ना. ते जिल्लै इक रुसलियां, एक किश होर भी आखेआ बिच, किश होर भी अक्खर इस्तेमाल कीता. ते एक्चुअल अक्खर केह् है? रौंसलियां. रौंस कुसी आखदे? रौनक की. रौनक रौंस होई ना. ते धारां रौंसलियां न, धारां खूबसूरत न, बड़े गल्ल रोमांटिक. ते जेह्ड़ा डोगरा सपाई जेह्ड़ा तू बाहर गेना है तू परतोइया. रौंसलियां धारां तेरा बड़ा मंदा लगदा. एह्दे कन्नै बड़ा बड्डा इक कल्चरल एस्पेक्ट जुड़े दा है कि डोगरे कि'यां मते वारियर कौम है, कि'यां जंदे कि'यां, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन असें जिल्लै भाशा बोलनी है, जिल्लै भाशा कन्नै जुड़ना है, ओल्लै संपूर्ण तरीके कन्नै भाशा कन्नै जुड़ी जाना. जिन्नी बोलनी उसी जि'यां ना तुस निक्के बच्चे प्यार जिल्लै करदे, बगाना होऐ थोड़ा घट्ट करने असें नी, हत्थ फेरी होने सिरे पर इ'यां थोड़ा इ'यां अपना घट्ट लगदा. पर जिल्लै अपने आह्ला होंदा ते ओह् मता अपना लगदा नी. ते उसी जिल्लै तुस सिरे पर हत्थ फेरदे, संपूर्णता होंदी नहीं होंदी ओह्दे च. ओह् संपूर्णता उस भाशा च आनी जेह्ड़ी तुस बोलो, और ओह् ओल्लै गै पॉसिबल होंदा जिल्लै तुस झक्को नहीं, जिल्लै तुस शर्म नहीं करो उस भाशा गी बोलने. ते तुसें जेह्ड़ी भी भाशा तुस बोलदे हो, जेह्ड़ी तुस भाएं कश्मीरी बोलदे हो, डोगरी बोलदे हो, गोजरी, साढ़े कोल साढ़ी जेह्ड़ी यूटी है ओह्दे च ते असेंगी बड़े समृद्ध आं उस मामले च अस, क्योंकि साढ़े कोल बड़ियां भाशा खुल्लियां हर 10 किलोमीटर बाद बदली जंदी, हर जगह बदलदी, साढ़े मती बदलदी. इन्नियां किस्मां न, इन्ने मतलब कक्ख नहीं बदल करी आगे बदली जाग. उस सब की समझना एक और बड़ा चक्कर बनदा. जेह्ड़ा बेचारा बिंद थोड़ा छिंडे दा होंदा ना, जेह्ड़ा जम्मू आंदा होंदा आइयै जिल्लै ओह् करा दी लब्भो ते उन्न जिल्लै डोगरी बोली उ'नें आखना तू कुत्थुआं दे? मैं आखना मैं बसोली. थुआढ़ा इ'यै नहीं कोई डोगरी बोलदे, तू नहीं बोला कर डोगरी, तू रियाला नहीं. इ'यां आखने नहीं अस. इज दैट राइट और रॉन्ग? अटली रॉन्ग. यू आर किलिंग अ लैंग्वेज. हर भाशा का अपना अपनी जगह का अपना स्वाद है, एक फ्लेवर है, ओह्दी समृद्धता है ओह्दे च, उसदे च ओह्दी रौंस है. अगर असें उ'ऐ मारी ओड़ी ते फ्ही भाशा केह् रेही? एह् डेड लैंग्वेज होई गेई. ओह्दी आंचलिकता नहीं खत्म करनी. पंचैरी आह्लें दी अपनी ओह्दे च आंचलिकता है, जेह्ड़ी बसोली आह्लें दी है, जेह्ड़ी तुसें रामनगर आह्लें च लब्भनी, जेह्ड़ी जम्मू आह्लें च लब्भनी, जे थोड़ी बहुत बची दी होग. ओह्दे बाद जेह्ड़ी तुसेंगी दूर जाके थोड़ा जेहा तुसें डोडे पास्से लब्भग. हर पासे अलग अलग किस्म दी जेह्ड़ी है, और बक्ख-बक्ख शब्द भी लब्भगन, बक्ख-बक्ख वोकैबुलरी. अस इक दिन च अपनी भाशा च किन्ने शब्द ओह्दे जोड़ने आं, ओह् साढ़ी जेह्ड़ी है दिनचर्या च हिस्सा होना चाहिदा. ते जिल्लै अस सोचने आं शामीं बेहियै कि अगर असें अज्ज भाशा बी बोली है,
कनेही बोली क्या किश सिक्खेआ नवां सिक्खेआ या जि'यां एह् मी जिला मी सान साहब ने आखेआ कि अस बीएड कॉलेज प्रोग्राम कराने आं मेरी बड़ी मर्जी ही इत्थै आने दी क्योंकि मी मौका लगग ऐसे लोकें कन्नै गल्ल करने दा कि सॉरी जेह्ड़े औने आह्ले टीचर्स अगर तुसें गी भाशा दे बारे च शैल करियै नहीं सखाया जाग मैं कोई तुसें गी डोगरी सखाने नहीं आया ना मैं जस्ट एक गल्ल करने एह् आए ना अगर एज टीचर्स अस शर्म करदे रेह् मैं अंग्रेजी पढ़ांदा होंदा हा इक बारी हो सकदा है हेरिटेज एग्जीबिशन कीती अपने कॉलेज साढ़े एक स्टूडेंट ही उसमें तैयार करने की कोशिश की मैं इ'यां करेआ तू डोगरी च कंपेयरिंग करेआ ते उन थोड़ी त्यारी शरी उन्हें मैं उसी पूरा ड्राफ्ट लिखी देई ओड़ेआ तो उन्हें पढ़ना हा कन्नै कन्नै कंपेयर करना हा मगर मैं अपने स्टूडेंट गी आखेआ कंपेयरिंग कर उन्हें केह् कीता उन थोड़े चिर तक कोशिश की अगले दिन आई आखने लगे सर ये मुझसे नहीं होगा सर मैं एक्चुअली मीरपुरी बैकग्राउंड से हूँ हालांकि बड़ी काबिल कुड़ी थी इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लगी थी मगर मुझसे ना जस्टिस नहीं हो पाएगा मी लग गया ठीक आख्या मैं कोई बात नहीं मी लग गया कि थोड़ा इस कॉन्फिडेंस हालांकि उधमपुर के रौंदी हो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कट है कुछ अगले दिन कख नहीं होया मैं आपको स्टेज पकड़ी जिंदगी नहीं आती बॉलीवुड हाफ द कॉलेज कुड नॉट बिलीव कि अंग्रेजी पढ़ाने वाला डोगरी बोल ही सकता है एंड दैट वाज अ न्यूज़ फॉर मी कि बच्चे और खास करिए कुड़ियां इस मामले च कुड़ियां पिछे होंदियां भाशा दे मामले च देखा इत्थै मुड़े अग्गे होंदे मुड़े डोगरी बोलने झक नहीं करदे कुड़ियां थोड़े पखंडे च पेई जंदियां ओह् सोचदियां असें जे डोगरी बोली असें ग्राईं लब्भना शुरू होई जाना ओह् ग्राईं जिन्ना लब्भना उन्हें लब्भना अंग्रेजी बोलो असें गी उस कुकून बिचा बाहर आना पौग जिल्लै धोड़ी बाहर नहीं आओगे ते उड़ान कि'यां भरगे उड़ान नहीं भरगे नमें आसमान कि'यां छूगे साड़ी भाशा असें गी जि'यां मैडम ने आखेआ मैं 25 साल खबरां पढ़ियां डोगरी दियां जदों शुरू कीतियां उदों थोड़ी आंदी होनी पर रोज सोचते गए सीखते गए अग्गें बढ़ते गए हाँ मगर एक चीज़ कन्नै ही कि आई ऑलवेज आइडेंटिफाइड माई सेल्फ विद माई लैंग्वेज जिसलै मिगी पता लग्गेआ मी बीए थोड़ी हिंदी पता है डोगरी तो बोलते पर वो ड्रामे डोगरी बोलते हैं जियां मतलब कोई इन्ने कॉन्शियसली शैल तरीके नहीं बोलते हैं जिसलै ਉਹਦੇ बाद मेरी जॉब लगी एज ए टीचर तो मैं पहाड़ा पर नौकरी लगी पहली बारी मैं सरकारी स्कूल दिखा तो एक ग्रां दिखा पहाड़ दिखा मैं बड़ा खुश होया कि मिगी तो मौका मिली है इत्थै मिगी तो भाशा सिक्खने थ्होई जानी है एंड देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग व्हाट दे स्पीक हाउ दे स्पीक लफ्ज़ ओरिजिनल केह् है कि'यां ओह्दे कन्नै मेरी एक थोड़ी जेही जेह्ड़ा नेटिव जेह्ड़ा एक प्रोनंसिएशन का जो तरीका है ना ओह्दे च आई गया और ओह्दे बाद में बोलदा चलिया अज तुस आखो डोगरी बोलने की मिगी शर्म आंदी मिगी कदें भी नहीं आंदी दफ्तर में मतलब दिन दे मैं मतलब अगर 8 घंटे च या 10 घंटे च मैं 8 घंटे जेह्ड़ा मैं डोगरी बोलना और ओह्दे कन्नै केह् होंदा ओह्दे कन्नै तुस कनैक्ट मते शैल होंदे दूआ थुआढ़े ने गल्ल करने झकदा नहीं ना मी गल्ल समझाने च चिर लगदा जिसलै मैं शुरू च मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हा ते मैं नमें दफ्तर गया तो मैं सोचे अंग्रेजी की आदत ही मैं दिक्खेआ कि लोग टच नहीं आवा कनैक्ट नहीं होंदे है झकदे हे गल्ल करने द मोमेंट आई शिफ्टेड दे बिकेम वेरी कंफर्टेबल माई कम्युनिकेशन इट्स स्मूदन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ते तुसें जिसलै कल गी क्लासरूम च पढ़ाना है ओह्दे च पैह्ली गल्ल एह् दिक्खनी कि कोई भी बच्चा अजकल दे स्कूलें च रवाज है कि तुस डोगरी नहीं बोलो पर हून थोड़े चेंज होआ दे क्योंकि मैं दिक्खेआ एक पिच्छे नेह् एक स्कूल दा प्राइवेट स्कूल केह्ड़ा हा उत्थूं दे बच्चे मिलेआ उं'दे स्कूल डोगरी एज सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होआ प्राइवेट स्कूल च और बच्चे पढ़ा दे हे ते मैं गल्ल करा ना कि बच्चा लब्भेआ सैनिक कॉलोनी च कुतै उस पासे दे स्कूल च कुसै च पढ़ा दा हा और उं'दे स्कूल डोगरी एज सब्जेक्ट ओह् बच्चा पढ़ा दा हा हालांकि बोलेआ मां डोगरी बोलना भी औंदी है एंड मैं लिखी लैनी पर मिगी डोगरी बोलना नहीं आंदी देन वी हैड अ सेशन कि हाउ टू स्टार्ट इट एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करना ना बाकी संपूर्ण भाषा कुसै नहीं आती होती मगर शुरुआत करो और आगे बढ़ते जाओ एज टीचर्स अगर तुस रिलक्टेंट होगे तुस हेजिटेंट होगे बोलने तो थोड़े बच्चे कदें भी अच्छे लर्नर नहीं बनते उन्हें डायनेमिक कि'यां बनाना डायनेमिक कि'यां बनते हो ये सब कुछ आंदा हो हर चीज़ च हत्थ पाने दी जि'यां तुसें इन्ने अच्छे इत्थै प्रोजेक्ट कीते तुसें एह् भी दिक्खेआ ओह् भी दिक्खेआ एह् भी सोचेआ ओह् भी सोचेआ थोड़ी देर च फर्स्ट क्लास प्रेजेंटेशंस तुसें कीतियां इत्थै वो कोला पॉसिबल होंदा जिसलै तुस हर चीज़ पासे सोचने समझने तैयार हो हर भाषा पासे तुसें रिसेप्टिव होना पो और जिसलै तुस बच्चे गी चीज़ समझागे तो वो चीज़ का बड़ा फायदा हो
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ दूई चीज़ है कि जिल्लै थोड़े एवरीडे जेह्ड़ी टीचिंग होगी ਉਹਦੇ 'ਚ तुसें जेह्ड़ा अज्ज सखाया जा करदा है इसी तुसें कि'यां इंटैग्रेट करना उसी इंटैग्रेट सपोज हून जि'यां तुसें वैटलैंड्स उप्पर गल्ल कीती है अस कुसै बी लैंड उप्पर गल्ल करा दे होगे ते कुतै ना कुतै तुस लिंक करी सकदे हो विद योर ओन नेचुरल हेरिटेज नंबर 1 और जिल्लै तुस नेचुरल हेरिटेज पासे आई के जाओ या बिल्ट हेरिटेज पासे आई के जाओ सपोज तुसें माता वैष्णो देवी दी गल्ल कीती या उस रूट दी गल्ल कीती और अस माता वैष्णो देवी दे रूट दी गल्ल करचै या उस पासे दी गल्ल करचै या पेंटें दी गल्ल करचै ते असें गी पद्मश्री गुलाम मोहम्मद इफ आई एम राइट उंदा नां चेता नहीं आवा फिर वो बड़ी शर्म दी गल्ल हो कि अस डोगरे हैं आई मीन आई ऑलवेज बो डाउन इन रिस्पेक्ट व्हेन आई रिमेंबर हिम बस सच अ फिगर जिन्हें सारी उम्र पेंटा गाई और इन्नियां खूबसूरत गाई कि मिगी कोई पेंट अच्छी लगदी नहीं आउंदी पेंट दे सिवा उइयां लिंकेजेस तुस जिल्लै क्लास च करगे थोड़ा बच्चा कन्नै कन्नै ट्रेन होआ दा होगा एज अ गुड जमुआइट गुड डोगरा गुड सिटीजन अ डायनामिक सिटीजन जिसे अपनी जगह का पता है क्योंकि कल तुस बड़े बड़े इंटरव्यूज च बोगे तुसें उन्हें पूछना उन्होंने तुसें पूछना है चीज़ वो भी पूछते हैं भाषा आंदी डोगरी बोलते हो तो जिल्लै तुसें उत्थै उ'ऐ नहीं बोली कि मुश्किल होई जाना तो मेरे हटा बैठा उन्हें आखना नहीं तू भाई हाले सिक्खी आ हाले नहीं बनी गल सो व्हाट आई मीन टू से कि तुसें उस भाषा दे करीब आना उस भाषा दे तुस जि'यां अंग्रेजी पढ़ा दे होगे फॉर एग्जांपल आई वाज जस्ट टीचिंग वन डे आई वाज ऑन हिज ब्लाइंडनेस ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਕਿ ਯੋਕ है ना योग ऊपर गल करन लगे एंड देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग द इमेज की कियां ते अब हुन जाहिर सी गल है जिल्लै योग दी गल करनी असें खेतरे जाना पिया जिल्लै खेतरे च पुज्जी गे ते उत्थै फिर जेह्ड़े ग्रां आह्ले हे ओह् मते एक्टिव होई गे उ'नें पता हा सारा भाई कियां शुरुआत होंदी कियां जिल्लै मतलब ओह् करना अपना बैल कियां लेने उत्थै ढगे आखदे ढगे कियां खेतरें च लेने उ'नें कियां उ'नेंगी तैयार करना कियां जुगड़ना केह् टूल्स यूज करने जिल्लै उं'दी सारें दी गल्ल आई ते फिर योग धोड़ी पुज्जी फिर योग जि'नें स्हेई मैने च कुदै दांत जुगड़े दे हे उ'नें पता हा योग दा केह् मतलब होंदा कियां रख होंदा मुंडे पर ते कियां जेह्ड़ा बैल कंट्रोल च आंदा ते कियां अग्गें चलदा इट बिकम्स ईजियर फॉर यू to teach anything when you connect it with day-to-day life and especially your own culture and own place, own language. ते जिल्लै तुस भाएं वेटलैंड्स दी गल्ल करो तुस भाएं माता वैष्णो देवी रूट दी गल्ल करो तुस भाएं कुसै भी चीज़ दी गल्ल करो अंग्रेजी च पढ़ाओ हिंदी च पढ़ाओ साइंस च पढ़ाओ मैडिकल च पढ़ाओ थुआढ़े कोल भाशा अपनी डोगरी है गै कन्नै कन्नै इन्ना हारा रिसर्च कर लाओ इन्नी हारी गल्ल कर लाओ कि व्हाट इज दिस कॉल्ड इन योर ओन लैंग्वेज एंड दैट वे यू आर बिल्डिंग अ बिग वोकैबुलरी विद योर स्टूडेंट दैट विल बी योर finest contribution in that student's life करने करने के भी क्या आखदे होता है when I asked in the class कि what is yoke called in Dogri ते मतलब जिन्हें पता हो भी नहीं बोला दे उस चक गी असें अपनी जगह च बाहर कड्ढना पो और उस स्हाब कन्नै अगर तुस करगे एक बड़ा बड्डा एक तुंदे कोल जखीरा है एक बड़ी एक प्रेशियस थोड़े कोल धरोहर है विरासत है सॉफ्ट हेरिटेज है लिविंग हेरिटेज है जिस तुस डोगरी आखदे हो बगैर भाशा दे ना वेटलैंड्स चलने ना थोड़ा फोक सॉन्ग्स चलने ना थोड़े रूट चलने कख नहीं चलना जिन्नी भाषा नहीं हो जित्थे भाषा होंदी अज तुस दिक्खो हरियाणवी इन्नी अच्छे तरीके नाल बाहर निकली आवा दी है एंड वी ऑल एप्रीशिएट वी ऑल लव इट क्योंकि उनकी जेह्ड़ी अपनी जेह्ड़ी उनकी टिपिकलिटी है ना वो उनकी स्ट्रेंथ बनी गेदी ते सारी टिपिकलिटी भी ते स्ट्रेंथ बनी सकदी ना पर असें पैह्लें असें एक्सेप्ट करना फिर दूए असें एक्सेप्ट करना इस गल्ला बड़ा जरूरी है कि तुस अपनी भाषा कन्नै जुड़ी आओ जिनेंगी औंदी वो खुश हो कि तुंदे कोल एक बड़ा बड़ा एक जखीरा है एक भाषा है समृद्ध भाषा का एक जखीरा तुंदे कोल है उसी बोलो आगे बताओ और सीखने की कोशिश करो जरूरी नहीं है कि भाषा तुस लिटरेचर पढ़ के डोगरी तां गै औनी ना डे टू डे लाइफ च सीखो केह्ड़े लोग बोला दे कियां बोला दे क्या ठीक क्या गलत एग्जैक्टली सही केह् है गलत केह् है अपने आप पहचान करियै अग्गे बधदे जाओ एक अच्छा तलफ्फुज़ आने की कोशिश करो एक अच्छा फ्लो आने की कोशिश करो तुसें गी अच्छा लग्गग और तुस अपनी भाषा गी अग्गें लेई जागे खास करिए जे तुस टीचर्स ट्रेन होआ दे हो क्योंकि कल तुसें एक टीचर ने अगर एक अपनी जिंदगी च सपोज 1000 बच्चा पढ़ाया मिनिमम ते 1000 बिचा 500 की भी एक ही भाषा की शिक्षा देई ओड़ी बड़ी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी अस गल्लां बड़ियां करने हुंदियां असें अज भी डाले लाए जय डुग्गर जय डोगरी बट हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट एंड आर वी फीलिंग ashamed of what we are doing तां फिर सही है आर वी नॉट फीलिंग ashamed of speaking डोगरी तां फिर ओके उस एक जज्बे कन्नै आगे बढ़ना पो अपनी भाषा मैं डोगरी दे लहजे कन्नै गल कीती लेकिन भाएं कश्मीरी होऐ गोजरी होऐ पंजाबी होऐ कोई भाषा जेह्ड़ी तुसें आंदी है वो तुहाड़े कोल बड़ी बड्डी एक गैह्रा है और उसे सांभी रखना है और उसे अग्गें बधाना एह् तुसें करना
ताकि तुस जिला तुस एज टीचर जिस सामने खड़ोगे ना जाइए ओले तुसें आपू संपूर्ण होना पौंदा आपू थोड़े कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की तुस देई सको उस देने लिए पहले तुसें सीखना पो इस गल्ला जेह्ड़े कोर्सेज होंदे वगैरह वगैरह और इयै नेह् प्रोग्राम स्पेशली आई एम सो थैंकफुल टू आई एम श्योर दिस मस्ट बी एन इनिशिएटिव ऑफ प्रोफेसर शालिनी विद अ वंडरफुल एंथुसियास्ट अ वंडरफुल लिटरेचर टीचर अंग्रेजी से शायद भी आ गया मैं नहीं आखना क्योंकि तुस मदद जाचो और सामने अच्छी गल है the finest thing I like in Professor Shalini is still she is I mean all out to learn and all out to perform हर दिन नवी चीज innovation is something which makes you dynamic innovation और एक education I mean कॉलेज ऑफ एजुकेशन जी जगह पे है अगर तुम इनोवेटिव नहीं हो तो उसे सिखाना क्या है इस गला आई ऑलवेज फील वेरी गुड व्हेन आई मीट हर बिकॉज शी ऑर्गेनाइजेस वेरी गुड प्रोग्राम्स समटाइम्स शी मेक्स मी अ पार्ट ऑफ दैट आल्सो लिटरेचर दे प्रोग्राम्स ऑन और ये प्रोग्राम भी आई एम श्योर मस्ट बी हर इनिशिएटिव and I am really thankful to her for this because you really contributed a lot to the life of these students because when I organized one workshop in Udhampur and that was for school teachers and all these teachers till date they recognize that yes they were oriented so well that now they are working towards that but बड़ी बार बड़ी जगह मुलाकात हुई लोगों से and they were happy that they learned in that workshop such workshops they really contribute to your life and for that I am thankful to you and I am thankful to you to all these people and Sari sir for giving me an opportunity to come over here and interact with you I hope it's something you know that I share with you a lot of things to talk बढ़िया सारी चीज़ें जिनकी मैं गल करना चाहना लेकिन पर उन्हें वक्त नहीं है क्योंकि मैं भी हमारा एक मीटिंग अटेंड करनी चाहिए पर एक गल जो मैं पढ़ती दरां वो ये है कि तुस अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी च भाषा बोलो डोगरी बोलो जिन्नी शैल डोगरी बोलिए उन्नी शैल अंग्रेज़ी फ्रेंच जर्मन जिन्नी मर्जी सीखिए उन्नी शैल मैं लद्दाख गया मैं जिन्हें तौले मैं लद्दाखी सीखी वो आखते हैं इन्हें तौले लोग सीखते नहीं हैं और लफ्ज़ च फर्क नहीं आता क्यों क्योंकि मेरी डोगरी च मेरा जो बेस था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था उसमें मेरा जुड़ाव था मैं आइडेंटिफाई करता अपने आप को एक भाषा जिला मेरे को एक भाषा के स्ट्रक्चर्स जिला मेरे को है नहीं पता है भाषा कि'यां बोलनी कि'यां सीखनी दूई भाषा ते भाषा बेसिक लिंग्विस्टिक्स ते सेम गै होंदे सारे ओह्दे मुश्किल नहीं आई और जिल्लै मैं उंदी भाषा जि'यां सीखी मेरी एक्सेप्टेंस उंदी कम्युनिटी उन्नी गै ज़्यादा बधी और अज तोड़ी ओह् रिश्ता उन्ना गै बने दा अज भी जिल्लै लद्दाख दे बच्चे मेरे कोल आंदे उंदे जिल्लै लद्दाखी थोड़ी बहुत गल होंदी तो वो अपने आप एक कनेक्ट महसूस करना शुरू हो जाता बिकॉज लैंग्वेज कनेक्ट्स यू इस गल्ला तुसें इस चीज़ की बड़े ध्यान च रखना और इधर भी इस कॉलेज पढ़ते मौके भी अपने टीचर्स कन्नै भी बोलने झकना नहीं चार साड़ियां बड़ियां जड़ियां अच्छियां प्रोफेसर न अंग्रेजी दियां बड़ियां रिनाउंड एंड वेरी गुड प्रोफेसर पोस्टारक और जिन्हें वो जहाँ वो डोगरी बोलती हैं जहाँ अंग्रेजी बोलती हैं उन्हें नहीं पता कोले अंग्रेजी कोले डोगरी बोले नहीं है बट शी मिक्सेस इट सो वेल कि उनका ना एवरीबडी इज एक्चुअली फैन ऑफ प्रोफेसर पोस्टारक क्योंकि वो उन्हें कहते डोगरी बोलने कोई शर्म आसे नहीं महसूस किया और जिन्नी खूबसूरत इंग्लिश बोलती हैं उन्नी खूबसूरत डोगरी भी इस गल्ला असें इस भाषा की जी असें दौलत रूप च मिली दी है और जिसे अस अगे बधाई सकने जिसे अस पढ़ी सकने बच्चे ने एक बड़ी खूबसूरत इतना डोगरी की पोइम भी पढ़ी और पोइमां पढ़ो नवे तरीके तुप्पो पोइमां पढ़ने दे नवे लिखने के तरीके तुप्पो नवे बोलने के तरीके तुप्पो और जिहड़ा जिस फील्ड च अगर बॉटनी च कोई है उत्थों की शब्दावली कड्ढो जिहड़ा मैडिकल के फील्ड च उत्थों की शब्दावली कड्ढो जिहड़ा मतलब पोलिटिकल साइंस के फील्ड च उत्थों की शब्दावली किट्ठी करो इ'यां भाशा थोड़ी समृद्ध होंदी जाग और आगे जनरेशन जी है तुसेंगी बड़ी शुक्रगुजार रहो कि तुसें उनेंगी एक बड़ा सुरक्षित भविष्य जो है उन्हें देता है विद दिस वर्ड्स आई एम थैंक यू तो जितना मैंने कहा था आपने उनको इससे कहीं ज़्यादा ही पाया होगा एंड ही इज़ अ वेरी फाइन ट्रांसलेटर ऑल्सो वी आर हाईली थैंकफुल टू हिम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे और सुधीर सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मी मीट सहानी सर हमारे सूत्रधार आप हैं सो आज की वर्कशॉप में आपका भी योगदान है तो थैंक यू वेरी मच और ये इनिशिएटिव सहानी सर की तरफ से और इसमें पूरा सपोर्ट हमें रहा है अनुराधा मैम का so thank you all and before you leave us I would request Purnima ma'am to kindly give a floral presentation to Dr. Sudhir Singh ये वो शख्सियत हैं जिनको हम कुछ दे नहीं सकते ले नहीं सकते बट एक छोटा सा ये हम